You have to set your goals कि why you want to save money and how you can invest. उनकी नज़र में अगर हमारे पास घर और गाड़ी है तो हम वेल सेटल्ड हैं. हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया वो एक हद तक ठीक है, लेकिन हमें उसे अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की जरूरत है. Hello and welcome everyone to the Fireside Chat at Business Standards Ignite Square. We have with us one of the most followed finance influencers, Neha Nagar. Welcome, Neha. Thank you so much. Thank you for inviting me. I'm very excited for this conversation. Very, very excited. Let's go. So in this session is structured into 3 parts. We will begin with frequently asked questions about finance and content creation. Then we have which is better segment. And then finally we'll wrap up with rapid fire round where Neha will share her views in one word or a sentence. So I'll start with what are the top 3 finance myths you believed in before starting your content creation journey? So since childhood we have been taught to save. Just save money. Whenever you start earning through business or salary or job, so whenever we start earning we have some amount of money. So our first instinct is to save only. But saving is not enough, because when we are saving, we are letting inflation eat our money. So, of course, our parents have taught us very well that we have to save, but saving is not enough. We have to protect our money from inflation. I'm sure many of you would know that education inflation is not 6%. So the retail inflation is 6%, but not all type of inflations is 6%. जो retail inflation है वो 6% है, education inflation is 14%, and medical inflation is also 14%. So when we are saving, we are just letting the bank have our money and give us just 2-3%, which is not even beating retail inflation. बट जब हम सेविंग से एक स्टेप आगे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग, नॉट इन्वेस्टिंग. अच्छा, हर किसी को लगता है कि फाइनेंस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग, बट इट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मनी. तो जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए. तो जो पहला वाई है दैट इज इन्फ्लेशन, उससे प्रोटेक्ट करना है. दूसरा कि क्यों, why we want to do, why we want to manage our money, why we want to have more money, because we have financial goals. पहले रोटी कपड़ा मकान 3 ही गोल हुआ करते थे, बट nowadays you want to have iPhone, you want to go on foreign vacation, you want to have everything. कोई लेटेस्ट गाड़ी होती है तो वो आपको हर 5 साल में अपडेट भी करनी होती है. तो अब वो 3 ही गोल नहीं रह गए, रोटी कपड़ा और मकान. अब आपको हर एक गोल के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा. इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स या जो एल्डर्स ने सिखाया वो इनफ नहीं है अभी हमारे लिए. हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा कि कैसे मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, जो अमाउंट मेरे पास आज है उसको अगर मैंने काम पे नहीं लगाया तो वो आने वाले 3 साल बाद या 4 साल बाद कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस वक्त वो इनफ नहीं होगा. तो नंबर 1 मिथ तो यही है कि सेविंग इज इनफ. सेविंग इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट द ओनली वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू मैनेज योर मनी, यू हैव टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस, you have to set your goals ki why you want to save money and how you can invest. Second is since the very beginning, the marriage shadi wala concept, we have been taught कि it's all about love, how you are very practical, compatible with yourself or with your partner also. But it's not just about money, it's not just about love, it's also about money. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ में फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, एक पेज पर है, माइंडसेट हमारा एक है, तो फिर हम जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाते हैं. बट अगर हमारा पार्टनर खर्चीला है और हम सिर्फ सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जाकर हमारी बात बिगड़ सकती है, हमारे फाइनेंसेस बिगड़ सकते हैं. बट अगर हम पहले से अपने पार्टनर के मनी माइंडसेट को जानते हैं कि व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, जो हम चाहते हैं, क्या हम दोनों सेम पेज पर है, क्या जो हमारा रवैया है या जो हमारी सोच है, जो हमारा माइंडसेट है पैसे को लेकर, हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं मनी को लेकर या नेगेटिव थॉट रखते हैं, क्या हमें पैसे के बारे में सोचकर डर लगता है कि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, या फिर हम थोड़ा सुकून महसूस करते हैं कि ठीक है जितना है उतना इनफ है. तो क्या इन सब चीज़ों पर हम अग्री कर रहे हैं? जब हम अग्री कर रहे होंगे तभी हम एक फ्रूटफुल जो रिलेशनशिप है वो रख पाएंगे, और तभी हम अपनी जो लाइफ है उसको बेटर कर पाएंगे. तो सेकेंड मिथ इज दिस. एंड थर्ड मिथ, हमें ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट का प्लानिंग हम जब 40 के हो जाएंगे या 45 के हो जाएंगे तब करना होगा. बट आई टेल यू कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग चालू कर दोगे, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे आपकी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए हो, चाहे फिर आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, उतना बेटर है. जैसे आई एम श्योर आपने वेलकम मूवी देखी होगी, तो एक एग्जांपल लूँगी उसी मूवी से, मजनू और उदय का. तो मजनू क्योंकि
एकदम मस्त मौला है, तो वो सोचता है कि जो भी चीजें हम बाद में कर लेंगे, आज में जीते हैं। तो आजकल का जो हमारा ऑडियंस है ना, जो हमारा यंग जनरेशन है, वो मजनू है, क्योंकि वो आज में जी रहे हैं, वो कल की कम सोचते हैं कि ठीक है ना भाई, चिल करते हैं ना भाई, वैसा वाला है। जो उदय है ना, वो थोड़ा बिजनेस माइंडसेट या पूरा सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला है। तो होता ये है कि जैसे दोनों की जॉब मान लो साथ में लगती है, तो उदय सोचता है कि यार ये जो मुझे पास पैसे आए हैं, मान लो उसके पास अगर 10,000 ही आए हैं, तो उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करते हैं। जो सेविंग हो रही है 10 या 15,000, मान लो 15,000 जो अप्रोक्स अभी आइडियल सेविंग जो लोग कर पाते हैं मेजोरली इंडिया में, तो 15,000 वो सोचता है कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो मजनू के पास जाता है कि मैं ना इसको ना इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, 15,000 रुपये हर महीना, तू भी चालू कर दे, क्योंकि हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ने ही वाली है रिटायरमेंट के लिए, या बच्चों के एजुकेशन, या बहुत सारे गोल्स होते हैं सबके लिए। मजनू बोलता है ठीक है ना भाई, बाद में करते हैं ना। तो उसने नहीं सुनी, उसने सोचा कि अभी अभी जॉब लगी है, आईफोन लूंगा, गाड़ी लूंगा, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दूंगा, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दूंगा या वाइफ को। तो वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर 10 साल बाद वो दोनों मिलते हैं, फिर से फाइनेंसिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो पिछले 10 साल में जो उदय है उसने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 रुपए करके, और 15-15 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 15-15 हज़ार रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके 18 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और उसका रिटर्न 82 लाख हो गया है। तो वो मजनू को बताता है, मजनू कहता है इतना इतना अच्छा रिटर्न मिल गया तुम्हें, अब तो मैं भी करता हूँ। तो मजनू कहता है कि अब ना मैं तुमसे डबल करूंगा, तुमने 15 किया था, मैं 30 करूंगा, ताकि मेरे और तुम्हारे रिटर्न सेम हो जाए जब तक तुम्हारा रिटायरमेंट होगा। तो वो कहता है ठीक है। तो उदय तो अभी भी 15 ही कर रहा है, मजनू ने 10 साल बाद लेट 30 करना चालू कर दिया, 30,000 पर मंथ। तो फिर वो फिर से 10 साल बाद मिले। अब 20 साल हो गए, मतलब जब से इन्वेस्टिंग चालू करी है उदय ने। तो मजनू को तो इन्वेस्टिंग करते हुए 10 साल हुए, और उदय को 20 साल हो गया, लेकिन टोटल अमाउंट दोनों ने 18-18 लाख ही लगाया है, और 36-36 लाख ही लगाया, 36-36 लाख। उसने 30,000 रुपये महीना, और उसने 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, है ना। बट जो रिटर्न्स आए हैं उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो उदय के पास ज्यादा था, तो उसने जो कॉपस बनाया वो 5-6 करोड़ का बनाया, और जो मजनू है उसने सिर्फ 2.5 करोड़ का बनाया है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जितना जल्दी स्टार्ट किया उतना ज्यादा उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला, और वो पैसा कंपाउंड होकर उनको ज्यादा मिला है। तो इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हम हो सके रिटायरमेंट या अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट करने की चालू करें, ये ना सोचे कि बाद में करते हैं। जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन हमें उसे अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की जरूरत है। All right. Neha, you have millions of followers across, different social media platforms. I'm curious, how do you see the recent SEBI guidelines for influencers? Okay. So in any industry, there are two type of people. One is bad and one is good also. Right. So there are multiple types of influencer in our category also. कुछ है जो एकदम जो लीगल तरीके से, या जो चीजें अलाउ नहीं है वो चीजें करके फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, और एक है जो सिर्फ एजुकेट करके ही फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को गुड कैटेगरी में मानती हूँ। तो मैं सिर्फ एजुकेट करती हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो कौन कौन से रेशियोज देखने हैं आपको, अगर आप स्टॉक चूज कर रहे हो तो कौन कौन से रेशियो चेक करने हैं, इन्फ्लेशन इतना है तो आप कैसे सेविंग्स को सही ढंग से प्लान करके इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे और आज की जिंदगी भी जी पाओगे। तो मेरा ऐसा कंटेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग करेंगे तो आज कब जिएंगे। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो तो आज की छोटी छोटी खुशियां वो भी इंजॉय कर सकते हो और कल के लिए सेव भी कर सकते हो। तो मेरा कंटेंट तो ये है। अब दूसरे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनसे सेबी को प्रॉब्लम है। वो कौन से होते हैं? जो आप ढूंढ रहे होते हैं, आप सब ढूंढ रहे होते हो, आप सबको क्विक मनी चाहिए, एकदम बस कोई बता दे मुझे वो स्टॉक का नाम, मेरे पास पैसे लगा दो और मेरे पैसे डबल हो जाए। तो हम सभी का ये माइंडसेट होता है कि हमें बस स्टॉक के नाम पता लग जाए या म्यूचुअल फंड के नाम पता लग जाए। तो आपकी जो माइंडसेट है, ये जो क्विक मनी है, जो ग्रीड है, इसको हिट करने के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं फिर वीडियोस बनाते हैं, टॉप 3 स्टॉक्स टू बाय, या ये वाला स्टॉक ले लो, या अभी आने वाले 21 दिन में बढ़ने वाला है। जैसे अयोध्या के टाइम पर जब राम मंदिर बन रहा था, तो उस वक्त इतने सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस पोस्ट किया कि अयोध्या के बाद ये वाले स्टॉक्स भागेंगे, या इलेक्शन भी हुए थे उस वक्त, तो इलेक्शन के बाद ये वाले स्टॉक्स भागेंगे, या अभी जैसे यूएस में इलेक्शंस है, या जो भी अभी हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिक या जो भी चीजें चल रही है उनके अकॉर्डिंग।
तो ऐसी वीडियोस को व्यूज मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, तभी वो क्रिएटर्स बना रहे हैं, बट वो बना रहे हैं बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजी, जो आपको इजी मनी चाहिए होता है, जल्दी चाहिए होता है। तो जब ये इतने एक्सेस में होने लगे ना नंबर, तो सेबी को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि फिर इनमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो किसी कंपनी से पैसे लिए और उसको जो स्टॉक है उसको प्रमोट किया। तो जब स्टॉक ऊपर चला गया, फिर वो प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक्स बेच दिए, और जो जनता है, आम जनता है, वो हाई प्राइस पे फंस गई वहां पर, वो बेच नहीं पाई, उसका लॉस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, तो इस वजह से सेबी को प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स, हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। आप मेरी एक वीडियो नहीं ढूंढ पाओगे कि जिसमें मैंने स्टॉक का नाम लिया हो या म्यूचुअल फंड का नाम लिया हो। पिछले 5 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेट कर रही हूँ। तो सेबी को प्रॉब्लम है नाम लेने से कि आप एडवाइजरी नहीं दे सकते, एडवाइजरी देना है तो आप लाइसेंस लो। तो मैं अगर लाइसेंस नहीं हूँ तो मैं एडवाइजरी नहीं दूंगी। सेबी को प्रॉब्लम है कि आप फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते हो कि आप इतने % रिटर्न कमा लोगे मेरी ये स्ट्रेटेजी अपना कर या मेरे को फॉलो करके, तो वो हम कभी नहीं करते हैं। सेबी को प्रॉब्लम ही नहीं है हम जैसे क्रिएटर से, तो हम डरते भी नहीं है और हम काफी वेलकम करते हैं जो भी सेबी के डिसीजंस होते हैं। So are there any courses, like short courses one can do content creation के लिए? अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के लिए आई थिंक कंटेंट For क्रिएशन, finance content creation. I think you don't need any courses for finance content creation or any content creation. हाँ. बस इसका सिर्फ एक सिंपल सा हैक है कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, जिस भी स्पेस में आप हो, तो आप जिस भी दिन ये सोच लो कि मैं आज से कंटेंट क्रिएट करूंगा, उसी दिन आप ये सोच लो कि मैं आज से बना तो रहा हूँ पहला पीस ऑफ कंटेंट, बट नेक्स्ट 150 वीडियोस तब तक मेरी अपलोड नहीं हो जाती है, तब तक मैं रुकूंगा नहीं और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कि मेरे व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो आप हमारे जैसे स्टोरी सुनते हो, जैसे कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो डाली और मेरे को मिलियन व्यूज आ गए, तो आप ऐसी स्टोरी सुन रहे होते हो तो आपको लगता है कि मेरे क्यों नहीं आए, और आप 30 वीडियो डालोगे, 40 डालोगे, उसके बाद आप रुक जाओगे कि यार मेरा तो चैनल चल नहीं रहा है। बट इवेंचुअली हर एक बंदे को ट्राई करना चाहिए, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, एजुकेशन कुछ भी हो, कंटेंट क्रिएशन चालू करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे बिजनेसेस बिल्ड कर पाते हो। अब कंटेंट क्रिएशन कंटेंट तो हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम ये हो गया है अब कि हम जितना जल्दी उसे कंटेंट क्रिएशन से बाहर निकल सके और बिजनेसेस बिल्ड कर सके, ताकि हम लॉन्ग टर्म में 5 साल बाद या 10 साल बाद जब हम इतने हेल्दी नहीं होंगे, या जब हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमारे बच्चे होंगे या हमारा फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट होगा, हमें घूमना होगा, तो उस वक्त हम सिर्फ ये वीडियो बनाने पे अपना टाइम ना देके बाकी चीजों को दो, जो हमारा बिजनेस है उससे इनकम आ रही हो। तो आप देखोगे जितने भी फेमस कंटेंट क्रिएटर्स है, वो सारे पहले कंटेंट क्रिएटर तो बन जाते हैं, नंबर्स तो ले आते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो उनका टारगेट होता है वो ये नहीं है कि 2 मिलियन के 4 मिलियन कैसे करूँ, 4 मिलियन के 8, नहीं, ये किसी का टारगेट नहीं होता। किसी भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर का ये टारगेट होता ही नहीं है कि वो नंबर्स को फेच करता है या टारगेट करता है। वो टारगेट करता है कि कैसे मैं इसके साथ में कोई बिजनेस बिल्ड कर दूं, जिसकी वजह से मेरी जो इनकम है वो फिक्स हो जाए और मैं लेटर ऑन 10 इयर्स डाउन द लाइन या 15 इयर्स डाउन द लाइन उसमें सस्टेन कर पाऊँ। तो ऐसे ही आप जब कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहे हो, तो आप बस ये सोचो कि ये चीजें हो सकती है, मैं इसके थ्रू बिल्ड कर सकता हूँ बिजनेसेस, मैं इसके थ्रू पैसिव इनकम बिल्ड कर सकता हूँ, मैं इसके थ्रू ये। तो अब आप ज्यादा हाईली मोटिवेट होकर चालू तो करो, पर 150 वीडियो से पहले रुको ही मत, चाहे वो वीडियो आपका पूरा टाइम ही क्यों ना ले रहे हो लाइफ में। But how much hours do you put in? Like अभी कितना, और when you started your journey? यार जब मैंने स्टार्ट किया तब तो मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी, तो दिन के कितने घंटे? 24 घंटे। तो इट वाज लाइक कि मैं खाना भी खा रही, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कंटेंट ओनली, कि आज ये हुआ, आज मैंने ये पढ़ा, मैं इस पे वीडियो बनाऊं क्या। तो माय हस्बैंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम पहले से फाइनेंस की बहुत बातें करते थे। तो हमारे घर में बस यही बातें होती थी कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो मेजरली जो हमारा डिनर टाइम होता है वो मोस्टली दुनिया के बारे में ही होता है, कि आज इलेक्शन है तो मार्केट कैसे जाएगी, आज ये What would be the next topic, right? हाँ वैसा ही वैसा। तो यू हैव टू गो ऑल इन, जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो यू हैव टू गो ऑल इन। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको सेकेंडरी मान लो फॉर सम टाइम, और पूरा टाइम इसको दोगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा। बट जो 90% लोग फेल करते हैं वो इसीलिए कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। 30 वीडियो बनाई, 40 वीडियो बनाई, रुक गए, नहीं नहीं नहीं, इतने से बिल्कुल काम नहीं करेगा। 150-200 बनानी पड़ेगी और हर वीडियो में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब मैं सही ट्रैक पे हूँ। एंड बिलीव मी, वंस यू
अचीव अ मार्क या 100K 200K, वो सारे जो एफर्ट्स पीछे आपने 1.5 साल लगाए हैं ना, वो सारे पे ऑफ हो जाते हैं. यू एवरीवन नो कि हाउ मच कंटेंट क्रिएटर्स चार्ज है, कैसे वो बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो सब पे बैक करता है. All right. Moving to choices in finance, which is better now? So I'll give you two options. You need to tell us which is better, right? Which is more beneficial, a debit card or a credit card, and why? अच्छा मैं एक चीज बता दूं, क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है. मतलब क्रेडिट कार्ड उनके लिए बना है जिनके पास बहुत पैसा है. क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन या उधारी ले ली है और ऐसा सिचुएशन आया, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गया और आप उस लोन को रीपे नहीं कर पाए, तो 32-33% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है. इससे महंगा इंटरेस्ट रेट किसी का भी नहीं है, प्लस उस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो इवेंचुअली वो 40% के आसपास का इंटरेस्ट रेट आ जाता है, राइट? तो क्रेडिट कार्ड वही लोग यूज करें जो उसको सेंसिबली वाइजली यूज कर सके. बहुत सारे रूल्स है वो फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ऑटो डेबिट का ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड्स तो बहुत मिलते हैं. इतने रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि आप फ्री घूम सकते हो इंटरनेशनल ट्रिप, या फ्री में जो 5 स्टार होटल के स्टेज है वो ले सकते हो. इतने रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको. अगर आपका जो भी मंथली स्पेंड है वो हर चीज आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो मिंत्रा या अमेजोन की शॉपिंग हो, चाहे आप फोन या गाड़ी या कुछ भी ले रहे हो, अगर आप उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो और आपका जो मंथली बिल है वो 50,000 या अबव आ रहा है, तो आपको इतने सारे पर्क्स मिलते हैं कि आपको फ्री स्टेज मिल जाएंगे, फ्री होटल टिकट मिल जाएंगे, डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कैशबैक मिल जाएंगे, रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, जिनको आप कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे यूज कर सकते हो, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन एक डाउन साइड भी है जो कि अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक का डिस्कशन था. आरबीआई गवर्नर सर ने भी ये बोला था कि कैसे हमारा इंडिया का जो डेट कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स के पास पैसा नहीं बचा है. बैंक्स के पास पैसा नहीं बचा है, इसका मतलब है कि लोग या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपीज कर रहे हैं, या फिर खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसे रख नहीं रहे अपने पास में. तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हमारा जो डेट है वो बढ़ रहा है, कैसे हम पहले सेविंग इकोनॉमी हुआ करते थे, अब धीरे धीरे हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह डेट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं. तो टू सम इट अप, क्रेडिट कार्ड यूज करो, बेस्ट थिंग है, क्योंकि हमें बहुत सारे पर्क्स मिल रहे होते हैं. बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो प्लीज यूज मत करो, ये आपके लिए है ही. प्लस आपके पास अगर कैश क्रंच है, यानी कि आप फाइनेंशियल तंगी है, तो उन केसेस में तो आप बिल्कुल भी यूज मत करो. क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है. All right. What about buying a home or renting a home? So this is a very controversial topic जो हमेशा ट्रेंड करता रहता है. कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी या एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ ना कुछ कमिटमेंट या कमेंट कर देता है. तो होता क्या है ना कि जब हम 24 या 25 में हमारी जॉब लग रही होती है, तो हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तुम्हारी जॉब लग गई है तो अब तो तुम घर ले लो, क्योंकि उनकी नज़र में अगर हमारे पास घर और गाड़ी है तो हम वेल सेटल्ड हैं. उनको ये नहीं दिखता है कि जो घर है उसकी ईएमआई की वजह से मैं कितना क्रंच में आ गई हूँ, या उसकी वजह से मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ जो मेरी एज अप्रोप्रिएट है, जैसे कि इन्वेस्टिंग है, या फिर स्किल्स में इन्वेस्टिंग है, या एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्टिंग है, वो नहीं कर पा रही हूँ. तो टू सम पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, कि टू सम एक्सटेंट ये ठीक है कि आप 25 पे घर ले रहे हो, बट मेजोरिटी केसेस में जो 70% इंडिया है, जिसे हम भारत बोलते हैं, देखो टॉप 1% तो उनको तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी दादा की, उनकी मम्मा की, उनके पापा की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो घर ले या ना ले उनको कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे घर ले सकते हैं, राइट? बट आप मिडिल क्लास हो, आपके पास जो भी अमाउंट है यही है इन्वेस्टमेंट करने का, राइट? तो इसमें अगर आपने घर नहीं लिया या लिया है, वो आपके फाइनेंसेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए. जिनके पास ऑलरेडी फैमिली की वेल्थ है या घर भी है ना, तो उन वो ज़्यादा नहीं सोचे और ले लेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर आप महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए. अब कैसे डिसाइड करें कि हम घर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो बिफोर 30 तो जितना हो सके अवॉइड करना, क्योंकि बिफोर 30 हमारे करियर भी सेटल नहीं होता है, हमारी फैमिली भी सेटल नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कि फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे और हम कहाँ पर रहेंगे, लोकेशन क्या होगी, प्लस रेंटल यील्ड भी कमी है हमारा. तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको देखकर अवॉइड कीजिएगा कि 30 तक आप घर ना ले. लेकिन 30 के बाद जब आपको लगने लगे कि आप तो इसी सिटी में रहने वाले हो, आपकी फैमिली में 5 लोग ही होने वाले हैं,
और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है कि यहाँ का जो बिल्डर्स है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, देन यू कैन बाय अ हाउस। बट टू सम इट अप, एक रूल होता है फाइनेंस का रूल, उसको फॉलो कर सकते हो कि आपका जो भी घर का वैल्यू है वो आपकी जो इनकम है उसके 3 टाइम्स से कम ही होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप ओवरबोर्ड नहीं जाओगे, कि आप जो ईएमआई का बर्डन है उसमें दब नहीं जाओगे, स्ट्रेसफुल नहीं होगा आपके लिए। और 20% आपको डाउन पेमेंट करनी है, और आपकी जो ईएमआईज है वो आपकी जो घर की ईएमआई है वो आपके टोटल ईएमआई के 30% के अंडर आनी चाहिए। मतलब 70% जो स्पेस है वो बचना चाहिए फॉर योर नीड्स, योर वांट्स, या फॉर इन्वेस्टिंग इन एवरीथिंग। ऐसा ना हो, क्योंकि मुंबई में 50-50% का रेशियो है। मतलब मुंबई के जो लोग हैं मेजरली 50% जो अपनी इनकम का पार्ट है ना वो ईएमआईज में ही देते हैं, और जो 50% बाकी का बचा हुआ है उससे वो लोग कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल आ गया वहां पर। तो इतना ज्यादा यहाँ पर मतलब ईएमआई का ट्रेंड है इस वक्त। तो इसीलिए ये रूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कोशिश करना, अगर क्रेडिट कार्ड में यूज कर रहे हो, कि आपका जो ईएमआईज है वो अंडर 30 या अंडर 50 ही होना चाहिए। ओवरऑल तो अंडर 50 और घर वाला अंडर 30 होना चाहिए। देन यू कैन से कि हाँ मेरे पास रिलैक्सिंग का टाइम है, तो अब आप जो जॉब कर रहे हो उसको भी इतना स्ट्रेसफुल नहीं लोगे, क्योंकि आपको ईएमआई भरनी है तो बॉस की गाली सुननी पड़ेगी नहीं। जब आपके पास ईएमआई नहीं होगी, आपको पता होगा कि आप इन्वेस्टिंग करेंगे, म्यूचुअल फंड से आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है, या कहीं भी अगर आप उसको रियल एस्टेट में प्लॉट खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल ना लेके प्लॉट ले रहे हैं या कमर्शियल ले रहे हैं, वहां पर आपको फिर भी बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप कि जिस फ्लैट में रहने वाले हैं वो खरीदें। तो घर को कभी भी इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको घर ही ट्रीट करना चाहिए, और जितना हो सके रेंट पे रहिए। Okay, okay, it is rent then, right? Now, since अभी आपने खर्चे के बारे में बात करा, I have a question which is most frequently asked questions. One of them. What is a good way to determine if someone can afford to have a child? ओके, सो अफोर्ड अ चाइल्ड, तो ये टर्म ऐसी है ना कि कुछ लोग यहाँ पर अभी चिढ़ जाएंगे कि बच्चा भी अफोर्ड करता है क्या, बच्चा तो भगवान की देन होता है। तो इसको कैसे चेक करें? ठीक है, तो पहले मेडिकल एक्सपेंसेस इतने नहीं थे और घर में बच्चे होते थे, तो इतना प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं थी। बट अभी बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग की जरूरत है, बिकॉज ऑफ द जो मैंने मेडिकल इन्फ्लेशन आपको बताया, एजुकेशन इन्फ्लेशन बताया। तो जब आप चेक कर रहे हो कि अभी आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको ये तो चेक करना है कि आपकी जितनी भी ईएमआईज है वो 50% से कम ही आ रही हो, ठीक है। प्लस जो 1 साल का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का, तो उसमें बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, जैसे बच्चों की वैक्सीन होती है, डिलीवरी का खर्चा, अगर सी सेक्शन है तो और डबल हो जाता है खर्चा। तो वो अमाउंट आपके पास रेडी होना चाहिए, जो कि होता है 1 to 1.5 लाख। तो उतना कैश आपके लिए आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि अब आपके पास एक और फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली आप उस पर इतना शावर करोगे पैसा कि आपके जो मन, पैसा नहीं खुशियाँ, गिफ्ट वगैरह शावर करोगे कि आप सोचोगे कि हर चीज प्रीमियम क्वालिटी की खरीदनी है। अगर कोई टावल, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी बच्ची है वो 1 साल की हुई है, तो कोई टावल है अगर वो 100 रुपए का मिल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा और ऊपर क्वालिटी का, थोड़ा सॉफ्ट उसको फील लगे, है ना। Quality पे compromise नहीं. हाँ हाँ राइट, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं। I mean, तो yeah. हम लोग क्या करते हैं ना, इमोशंस में आगे कि हमारा पहला बच्चा है, हमारा बच्चा है, एक ही तो बच्चा है, तो उसमें हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज्यादा खर्च कर देते हैं, जबकि अगर इसे प्रीमियम से अगर नीचे जो अफोर्डेबल तो नॉर्मल क्वालिटी है वो भी चल जाती है। वो ओवर पैम्परिंग में ना खर्चे बढ़ जाते हैं हमारे, तो उसकी वजह से हमारा जो अभी मंथली एक्सपेंसेस है वो अगर मान लो कि 80,000 है तो वो 1 लाख का हो जाएगा, तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो वो 10-20% रेज आने वाला है उसके लिए भी पहले से आप अपनी जो इनकम है उसको एडजस्ट करके रखो, देन ओनली यू कैन से कि नाउ वी आर रेडी टू हैव अ चाइल्ड। Okay, okay. How do you see investing in cryptocurrency? तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ऐसा हॉट टॉपिक है जो ऑलरेडी हर कोई डिस्कस कर रहा होता है, हर कोई पूछ रहा होता है कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो एक न्यू एसेट क्लास है, ऑफ कोर्स, जो गोल्ड है, रियल एस्टेट है या बाकी एसेट क्लासेस है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है 100 साल में, 1.5 साल में, इसीलिए हम उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीके से मेजर कर पाते हैं, जज कर पाते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्योंकि बहुत ही नया है तो इसको जज भी नहीं कर पाते हैं। प्लस हर कोई वो रिसर्च नहीं करता है, स्टॉक मार्केट में भी नहीं करता है। तो स्ट्रेट अवे जो मेरा आंसर होता है वो होता है कि दूर रहो,
क्योंकि लोग क्विक मनी के चक्कर में सिर्फ नाम पूछते हैं, कौन से क्रिप्टो में लगाऊं, कब सेल कर दूं, कब बाय कर दूं। तो अगर आपका ऐसा सीन है कि आप इन डेप्थ रिसर्च नहीं कर सकते हो तो आप दूर रहो, नो नीड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। बट अगर आपको है कि आपकी पोर्टफोलियो का 5-10% खो भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, तो 5-10% यहाँ पार्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने पिछले 15-20 साल में देखा है कि क्रिप्टो करेंसी हमेशा बाउंस बैक करती है, तो यहाँ पर रिटर्न के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, प्लस रिस्क का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो वो रिस्क को देखकर ही आप इन्वेस्ट करो, और तभी इन्वेस्ट करो जब आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो। ऐसा नहीं किसी फ्रेंड ने बोला सुलाना में इन्वेस्ट कर दो तो सुलाना में कर दिया, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का। Okay, what about future and options trading? सेम यार, सेम। जो निखिल कामत सर है, ज़ीरोधा के को फाउंडर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कैसे, क्योंकि उनके पास वो सारा डेटा है ना। ज़ीरोधा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर इन इंडिया राइट नाउ, जिनके पास सारा डेटा है हमारा कि कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रेडर्स है ना इंडिया में, वो 87% लॉसेस में ही होते हैं हर साल। 87% ट्रेडर्स लॉसेस में ही होते हैं। तो एफएनओ में वही है, बहुत ही कम लोग प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, और प्रॉफिट का नंबर भी बहुत ही कम होता है, 5%, 2%। तो जितना हो सके इनसे दूर रहो। जो आपकी मेन बिजनेस है, जॉब है, उस पर अगर आप ज्यादा टाइम बिताओगे तो मुझे लगता है वहाँ ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। Alright. What is your opinion about fixed deposits? एफडी धीरे धीरे सबकी फेवरेट बनती जा रही है। शायद बैंक्स लोगों ने सुन लिया है कि हम लोग उनको कितना क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा माइंड में रखना होता है कि कैसे हम इन्वेस्टिंग करें कि इन्फ्लेशन तो एटलीस्ट बीट हो जाए। तो मोस्टली जो एफडीज होती है उनमें 6% से कम का रिटर्न मिल रहा होता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा था, प्लस टैक्स लग जाता है, तो माइनस में रिटर्न हो जाते हैं। बट अभी क्या ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ना, तो वो एफडी पर ना काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, 9% तक दे रहे हैं। तो पोस्ट टैक्स जो कि काफी अच्छा रिटर्न बन जाता है, प्लस गवर्नमेंट बैंक डीआईसीजीसी जो अथॉरिटी है, उनके थ्रू आपका जो 5 लाख तक का अमाउंट है वो इंश्योर्ड होता है। गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस देती है कि अगर ये बैंक डूब गया, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस है तो यू कांट ट्रस्ट मच, तो अगर वो डूब भी गया तो 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास आपका है, वो आपको दे देगी। तो इसीलिए 5 लाख तक की अगर आप एफडी कर रहे हो तो आप वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर सकते हो, वहां पर आपको इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न्स मिल जाएंगे। Okay, but which one would you prefer, FDs or mutual funds? यार हर किसी का ना यूज केस अलग होता है, गोल अलग होता है। तो पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल। तो इट्स कांट बी लाइक कि मैं आपको बोल दूं आप घर खरीद लो, मैं किसी और को बोल दूं घर मत खरीदो। आपको जो मैंने बोला है ना, तो वो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको देख के बोला है। किसी को बोला है कि मत खरीदो तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन। सेम विद एफडी। तो एफडी के लिए ऑफ कोर्स यू शुड इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड यू शुड इन्वेस्ट, बट गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास लॉन्ग टेन्योर का गोल्ड है, यानी कि मान लो आपको 3 साल बाद कोई गाड़ी लेनी है जिसकी डाउन पेमेंट करनी है 5 लाख, तो आपके पास टाइम है ना उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वहां पर आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको 1 साल बाद ही फॉरेन एजुकेशन पे जाना है, तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो गया और दूसरा बहुत ही पास में हो गया, तो यहाँ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कम हो गई। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और गोल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट चूज करोगे, और वहां पर आपने चूज किया था म्यूचुअल फंड। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और आप कितना ज्यादा रिस्क लेकर कितना ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो। And investing in gold versus equities? यार इक्विटीज तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स होते हैं उसके लिए हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। प्लस गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि गोल्ड ने हमेशा प्रूव किया है कि वो हमें ऑन एन एवरेज 9 to 10% रिटर्न दे देता है, उतना ही रियल एस्टेट भी देता है। जबकि गोल्ड में हमारा जो कैपिटल अमाउंट है वो भी कम होता है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी या बाकी के खर्चे नहीं होते जो रियल एस्टेट में होते हैं। प्लस जो गोल्ड ईटीएफ है या जो डिजिटल गोल्ड है उसमें लिक्विडिटी भी होती है। तो गोल्ड एनी टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक का, एनी टाइम। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जिसके 3 तरीके होते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड जो जनरली हम करते हैं इन्वेस्टिंग, सबके पास गोल्ड होता है, और उसका जो मेन यूज केस है वो है कि इसको हम पहनेंगे, नहीं पहन रहे तो लॉकर में रखा है और वो हमारे किसी काम का नहीं है। प्लस इस पे 15% मेकिंग चार्ज ऑलरेडी हम दे के आए हैं, प्लस उस पर मेकिंग चार्ज पर 3% का जीएसटी भी दे के आए हैं।
राइट? घर में रखा है तो चोरी होने का डर या टूटने का डर होता है। जब मैं इसे बेचने निकलूंगी तो मुझे आराम से इसका जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उसका 20-30% कम ही देगा ज्वेलर, राइट? तो गोल्ड तो जितना, ये फिजिकल गोल्ड तो है, जितना हो सके अवॉइड करें। जो आप पहन रहे हो उतना गोल्ड है तो इनफ है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से फिर आप जो बाकी दो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक तो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट की ही स्कीम है, गवर्नमेंट का ही बॉन्ड है, 100% सेफ है। गवर्नमेंट आपको इसमें घर पे रखने के लिए गोल्ड नहीं देती है, वो सिर्फ आपको एक फेवर देती है डिजिटल फॉर्म में कि आपका इतना गोल्ड हमारे पास है, जो कि 24 कैरेट का होता है। और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसमें कुछ भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। इसमें ये बेनिफिट है कि गोल्ड का जो रिटर्न है, जो एवरेज जो गोल्ड देता है मार्केट में, मान लो जो जैसे मैंने अभी बताया कि 10%, उसके साथ साथ गवर्नमेंट हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी देती है हमारी गोल्ड पर। तो वो 2.5% का जो बेनिफिट है ना, वो अगर आप कंपाउंड करोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखता है। तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने गोल्ड ज्वेलरी ली है और मैंने भी सेम टाइम में एसजीबी में इन्वेस्ट किया, तो हमारे जो रिटर्न्स है ना, वो कम से कम 5-6% का डिफरेंस दिखेगा। All right, our last question. 3 investment mistakes one should avoid. स्टार्ट अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, तो डिले मत करो, और जितना हो सके खुद को एजुकेट करो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर टिप्स कि कौन सा स्टॉक खरीद लूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद लूँ। एंड लास्ट, अपने गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने गोल्स ही नहीं बनाते कि उनको लाइफ में जाना कहाँ है। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप जाना कहाँ चाहते हो, जैसे एक शाहरुख खान का गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पे मैं छाऊं, तो वो तभी होगा जब आप 1 बाय 1 स्टेप डिसाइड करोगे। तो फाइनेंसिस में भी सेम है कि अगर आप करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर बनना चाहते हो तो गोल्स डिसाइड कर लो, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। All right, all right. Thank you, Neha, for the insightful conversation we had.